Hello everyone, welcome back. In previous lecture, I was explaining about the various parts of lathe machine tool. Okay, so we have also seen one video regarding lathe machine. Okay, so in the topics up to now, we have discussed about the engine lathes, the types, size of range of various types of engine lathes, construction arrangement, and principal units of lathe engine. Okay, we have seen the construction part of the engine lathe. Okay, the construction and the parts of engine lathe machine. Okay, so the parts, major parts: headstock, bed, cross slide, compound rest, tailstock, carriage, lead screw, leg, thread cutting mechanism. Okay, now this was the also we discussed about the lathe machine various parts, then the sizing of lathe and all the parts. We will discuss them one by one in detail about the all the lathe machine part. And the first important part is the bed. Now the bed is the foundation of lathe machine, and it is generally made of cast iron so that it is having good damping characteristics as cast iron, and is used to absorb the vibrations and load coming to this whole assembly. Okay, ऑल द अदर कंपोनेंट आर फिटेड ऑन लेथ बेड. जो ये हमारा लेथ बेड है उसके ऊपर सारे के सारे जो कंपोनेंट है, ये कैरेज है, हेड स्टॉक हो गया, टेल स्टॉक हो गया, तो ये जो सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे कहाँ पे माउंट किए जाएंगे? वो लेथ बेड के ऊपर माउंट किए जाएंगे. ठीक है, द वी शेप ऑफ बेड मेंटेन्स द एक्यूरेसी अलाइनमेंट ऑफ हेड स्टॉक एंड टेल स्टॉक. Okay, so it also was works as rails to guide the carriage on which the cutting tool is mounted. जो कटिंग टूल जो है वो यहाँ पे कैरेज के ऊपर माउंट किया गया होगा, और जो कैरेज है वो लेथ बेड के ऊपर माउंट किया गया होगा, तो उसको गाइड करने का काम लेथ बेड करेगा. ठीक है, ऑन द टॉप ऑफ द बेड देयर आर टू सेट्स ऑफ स्लाइड्स एंड गाइड्स. यहाँ पे जो टॉप पोर्शन है बेड का उसके ऊपर दो सेट होगी गाइड वेज की, टू सेट्स ऑफ स्लाइड्स एंड गाइड्स वे. द गाइड वे सरफेस आर एक्यूरेटली मशीन टू मेक देम पैरेलल टू द लेथ एक्सेस. और ये जो सरफेसेस है वो एक्यूरेटली मशीन की हो गई होगी ताकि वो पैरेलल हो सके टू द एक्सेस ऑफ लेथ. ओके, लेथ एक्सिस के पैरेलल, ताकि जो कटिंग हो वो हमको परफेक्टली कर सके. ठीक है, and to get the sufficient accuracy of the lathe and axis. Okay, so this is about the bed. Now another part is the tailstock. The tailstock is mounted on the tail side of the lathe bed or right side of the operator. जो यहाँ पे right side है operator की, और you can say it is mounted on the lathe bed or the right side, and the workpiece is held in chuck and supported by the tailstock from the other end. When tailstock is required, tailstock कब required होगा? कि जब कोई large workpiece है, ठीक है, वहां पे अगर हमको उसका मशीनिंग करना है तो उसको सपोर्ट चाहिए होगा ताकि वो बेंड ना हो जाए, तब टेल स्टॉक हम यूज करेंगे. दूसरा टेल स्टॉक का यूज क्या है कि यहाँ पे अगर कोई टूल माउंट करना है, जैसे कि ड्रिलिंग ऑपरेशन करना है टू द एंड फेस ऑफ द वर्क पीस, तब हम यहाँ पे ड्रिलिंग टूल माउंट कर सकते हैं और उसको वर्क पीस को हम रोटेट करेंगे और स्लाइडली इसको हम फीड दे सकते हैं. In this way we can perform the drilling operation with this. Okay, but another thing we can do is mainly the main purpose of the tailstock is to support the workpiece. Okay, long ended workpiece. Now the tailstock is used to hold the tools like drill, reamer, tap. Okay, these are also okay. So as I explained, it can also perform the reamer operation, tapping operation, as well as along with the drill. Okay, so it is commonly provided with the hardened ball bearing at the center, and that can be moved in only out by wheel adjustment. सो यहाँ पे जो यहाँ पे क्या होगा कि हार्डन बॉल बेयरिंग प्रोवाइडेड की गई होगी एट द सेंटर, एंड दैट कैन बी मूव्ड इन एंड आउट बाय व्हील एडजस्टमेंट. जो व्हील एडजस्टमेंट है उसके थ्रू जो ये बॉल बेयरिंग है यहाँ पे
इनसाइड वो हम उसको यहाँ पे मूव कर सकते हैं, ठीक है। So these are the parts. Here you can see there is a spindle clamp over at the top. Then there is, here it is the spindle. This is the live center. Actually it is dead center, it is called as. But here sometime if we use a tool over here, then it may be live center. Here there is one key provided. Key vase is there. Then this is the body. This is the set over screw. Okay. Then the graduations for tailstock set over. Okay. Then there is collar over here and the square threaded screw. Then there is a spindle clamp, tailstock clamping lever and lathe bed. So these are the parts and this is the general outer diagram of the tailstock. Next we will see further in the tailstock is it is also provided with a set over screw. This is the set over screw at its base for taper turning operation. When we require operation to be performed at taper turning, we might be requiring to adjust it at some angle. Okay, so at that time this will be helpful. Okay, if the feed or drill or similar tool toward the work when making hole in the casting and forging. फिर जब भी हमको ड्रिलिंग करना है या फिर रीमिंग करना है, ओके, सो जब भी हमको टूल को फीड करना होगा तब भी हम इसको यूज कर सकते हैं एंड इट कैन बी मूव्ड अलोंग द बेड ऑफ द लेथ टू अकोमोडेट डिफरेंट लेंथ ऑफ वर्कपीस। और यहाँ पे इसको हम मूव भी कर सकते हैं ताकि हम डिफरेंट लेंथ को अकोमोडेट कर सके, ठीक है। द बैरल इज हॉलो, यहाँ पे जो बैरल होगी, यहाँ पे ये देख सकते हो आप, बैरल देख सकते हो, दिस पार्ट ये पूरी की पूरी हॉलो होगी एंड इज बोर्ड विथ अ मोर्स टेपर। यहाँ पे जो टेपर प्रोवाइड किया गया होगा दैट विल बी द मोर्स टेपर। दिस टेपर लोकेट्स द टेपर शैंक ऑफ डेड सेंटर। और यहाँ पे ये जो पार्ट है वो टेपर क्या लोकेट करेगा, लोकेट्स द टेपर शैंक ऑफ डेड सेंटर। जो भी यहाँ पे टेपर शैंक है डेड सेंटर की वो यहाँ पे लोकेट करेगा एंड इट आल्सो लोकेट्स द टेपर शैंक ड्रिल टेपर और वी कैन से ड्रिल चक्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे ये लोकेट के लिए यहाँ पे यूज किया जाएगा, ठीक है, टू वेरियस ड्रिल एंड चक। Second part, very important, is the carriage, and the carriage is composed of mainly following part. One is saddle, then there is cross slide, or another is compound rest or compound slide. It is called as sometimes compound slide. Another is apron, and main over here the top portion here it is the tool post. This part is the tool post. So these are the five major part of the carriage. Okay, so first the saddle part. Here you can see the saddle. This is fitted to carriage and slides along the guide. ये जो सैडल होता है वो गाइड, यहाँ पे जो लेच बेड के पे ऊपर यहाँ पे स्लॉट दिए गए आप देख सकते हो, उसके ऊपर सैडल माउंट किया गया होगा। उसका पर्पस सिर्फ यही है कि वो हमको लॉन्जिट्यूडनल यहाँ पे स्लाइडिंग मोशन दे, ठीक है, इस डायरेक्शन में एक्सिस ऑफ दिस चक। ओके, इन दिस डायरेक्शन की जो मोशन है वो हमको सैडल के थ्रू मिलेगी। सॉरी। अनदर इज कंपाउंड रेस्ट और कंपाउंड स्लाइड। हियर on the top portion there is compound rest or compound slide. This before that I forgot cross slide. Here the cross slide is there. This permit the transverse or perpendicular to the axis of workpiece. ये हमारा वर्कपीस यहाँ पे फिक्स होगा चक के अंदर और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पे ये मोशन होगी क्रॉस स्लाइड की। सो जो क्रॉस स्लाइड है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये यहाँ पे स्लॉट दिया गया है, ठीक है। सो यहाँ पे सैडल के अंदर भी स्लॉट होगी यहाँ पे टॉप पोर्शन में। फिर ये जो पार्ट है वहां पे क्रॉस स्लाइड है वो लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन, यहाँ पे लिटरल डायरेक्शन और वी कैन से द ट्रांसवर्स डायरेक्शन और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पे मोशन होगी, जबकि सैडल की मोशन होगी वो लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन में होगी, ठीक है। और एंड देन देयर इज कंपाउंड रेस्ट और कंपाउंड स्लाइड। दिस हेल्प्स इन एंगुलर मूवमेंट। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक प्लेट टाइप आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये जो स्क्रू है, ठीक है, उसको ओपन करके हम यहाँ पे इसको
यहाँ पे रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। विद दिस एंगुलर मेजरमेंट आल्सो वी कैन रोटेट विद दिस हेल्प ऑफ दिस लीवर, ओके। यहाँ पे एक व्हील दिया गया होगा जिससे हम ये पूरा का पूरा यहाँ पे इसको पार्ट को रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये है कंपाउंड स्लाइड, जिससे हम एंगुलर मूवमेंट दे सकते हैं टू द टूल, okay. So we this provides the angular movement of the tool and this will be useful for taper turning operation. अभी taper turning है, उसमें किस तरीके का ऑपरेशन होगा कि सपोज लेट मी शो विद द diagram, okay. So this is one our shaft and we wants to perform a taper turning operation, okay. So the taper will be provided like this, okay. Somewhat it will look like somewhat this, it might not be accurate. So the taper will be provided with at some angle and in this way there is a change in length, okay. So the taper is provided to the workpiece. For that providing taper we require tool at some angle, okay. So that angle is provided with this compound rest or compound slide. Now there is apron. This contains the drive mechanism which is necessary to move the carriage along the guideways. फिर यहाँ पे ये एप्रोन आप देख सकते हो कि इसका पर्पस क्या है, यहाँ पे ड्राइव मैकेनिज्म होगा कि जिससे नेसेसरी मूवमेंट हम कैरेज को दे सके, जहाँ कि जैसे कि गियर अरेंजमेंट हो गया, ठीक है, जो ये लीड स्क्रू के साथ अटैच्ड होगा। हम डिटेल एप्रोन मैकेनिज्म आगे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो एप्रोन है वो यहाँ पे नेसेसरी मोशन जो है कैरेज को, वो एप्रोन के थ्रू इनसाइड जो मैकेनिज्म होगा ड्राइविंग का वो इस एप्रोन के इनसाइड होगा, ठीक है। एंड कैरेज अलोंग द गाइडवेज, और जो गाइडवेज को जो मोशन है वो एप्रोन प्रोवाइड, गाइडवेज पे ऊपर के ऊपर जो कैरेज को मोशन एप्रोन प्रोवाइड करेगा। दिस कैन बी ऑपरेटेड आइदर बाय हैंड और पावर फीड, और ये हैंड ऑपरेटेड भी हम कर सकते हैं, मैनुअल भी और पावर फीड भी पॉसिबल है, ठीक है। देन देयर इज टूल होल्डर, इट इज माउंटेड ऑन द कंपाउंड रेस्ट, जो ये कंपाउंड रेस्ट है उसके ऊपर यहाँ पे आप ये स्लॉट देख सकते हो, यहाँ पे ये टूल पोस्ट है, ठीक है। सो ये टूल पोस्ट यहाँ पे माउंटेड होगा ऑन द कंपाउंड रेस्ट। सो दिस इज अबाउट द कैरेज। Now let us see about the saddle. We have seen what is saddle. Saddle is this part. You can see here in this figure completely the edge portion. Here you can see this is our lathe bed and these are the guideways. You can see properly over here. These are the guideways with the slots. This is the complete guideways and the opposite slot is provided in the saddle. And the saddle is having the edge section. You can see one over here and this in this way. Okay. In the horizontal way it is look like the H, and H shaped casting that is machined to fit the outer way of the lathe bed, जो भी लेथ का जो आउटर वेज है यहाँ पे ये उसको फिक्स फिट करने के लिए यहाँ पे ये एच शेप सैडल प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। द सैडल कैन मूव ऑन वेज आइदर मैन्युअली और पावर, यहाँ पे जो एप्रोन मैकेनिज्म है उसके अंदर यहाँ पे ये पावर से भी ऑपरेट हो सकता है या फिर मैन्युअली भी ऑपरेट हो सकता है थ्रू गियर मैकेनिज्म इन एप्रोन, जो यहाँ पे एप्रोन के अंदर जो गियर मैकेनिज्म है उसके थ्रू यहाँ पे मूवमेंट पॉसिबल है। देन सैडल कैरीज द क्रॉस स्लाइड एंड कंपाउंड स्लाइड विद सूटेबल टूल पोस्ट, यहाँ पे जो सैडल है उसके ऊपर यहाँ पे क्रॉस स्लाइड होगी और क्रॉस स्लाइड के ऊपर कंपाउंड स्लाइड होगी और कंपाउंड स्लाइड के ऊपर सूटेबल टूल पोस्ट होगी। सो यहाँ पे आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो, विजिबल है कि यहाँ पे ये क्रॉस स्लाइड है और इसके ऊपर ये कंपाउंड स्लाइड है जो, और ओके, और उसके ऊपर यहाँ पे टूल पोस्ट माउंट की गया है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द सैडल। Another part here you can see in detail that is about the क्रॉस स्लाइड। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली कि ये हमारी क्रॉस स्लाइड है। अभी आगे जो बात किया था, ठीक है, वो थी यहाँ पे सैडल। सैडल जो है यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला पोर्शन जो है ये पूरा का पूरा दैट इज द सैडल, ओके, एंड दिस वन इज द क्रॉस स्लाइड। यहाँ पे ये स्लॉट के साथ देख सकते हो आप, ठीक है, ये जो लीवर है ये क्रॉस स्लाइड के लिए है, ठीक है।
और ये जो लीवर है वो सैडल के लिए, जैसे दैट इज द क्रो। और यहाँ पे जो ऊपर के यहाँ पे ये जो तीसरा लीवर है दैट इज फॉर द कंपाउंड स्लाइड। यहाँ पे सिर्फ दो ही दिए गए, जो कंपाउंड स्लाइड है और क्रॉस स्लाइड का। जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्रॉस स्लाइड का लीवर है वो, और यहाँ पे ये कंपाउंड स्लाइड का लीवर है, ठीक है। उसके नीचे यहाँ पे एक और होगा, दैट इज वो विल बी फॉर द सैडल, ओके, एट द बॉटम। एंड दिस वन इज दी अवर टूल पोस्ट। और यहाँ पे टूल पोस्ट के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो स्क्रूज है, यहाँ पे स्लॉट जो प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, वहां पे जो टूल है वो माउंट किया गया होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो टूल पोस्ट का लिए ये जो स्क्रू है, उससे हम जो टूल है उसको फिक्स करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये टूल पोस्ट के ऊपर वो माउंट किया गया होगा। उसके अलावा नीचे यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कंपाउंड स्लाइड है फीड स्क्रू, वो यहाँ पे दिया गया है। जो कंपाउंड स्लाइड के लिए जो हमको फीड चाहिए वो हम इससे दे सकते हैं, और उसके लिए कंपाउंड रेस्ट भी है, यहाँ पे कंपाउंड नट भी है। और जो ग्रेजुएशन है यहाँ पे सर्कुलर डिस्क भी होती है कई कई बार, मोस्टली केस में सर्कुलर डिस्क होती है, ताकि ग्रेजुएल इंडिकेशन उसके ऊपर दिए गए हो और हम एक एंगल पे उसको हम सेट कर सके, ठीक है, with the nut and bolt by removing the plate, and we can set at a particular angle, okay, and we can provide feed with the help of this, okay। यहाँ पे कंपाउंड स्लाइड से भी हम फीड प्रोवाइड कर सकते हैं टू द टूल। Another way is providing the feed is the cross slide. Cross slide we gives the longitudinal or the depth of cut motion. Okay, जो depth of cut जो डायरेक्शन में टूल है, यहाँ पे लॉन्जिट और परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ओके, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो मोशन है वो इस क्रॉस स्लाइड से हम दे सकते हैं। It is fitted with the indexing dials and it can be moved with पावर फीड और हैंड व्हील। यहाँ पे पावर फीड के थ्रू भी यहाँ पे मूव कर सकते हैं और हैंड व्हील से भी मूव कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट देयर इज द कंपाउंड स्लाइड। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली विजिबल है कि ये यहाँ पे एक प्लेट है, और ये जो प्लेट है, लेट मी शो यू बाय जूमिंग दिस पोर्शन। यहाँ पे एक प्लेट है और ये प्लेट है, यहाँ पे नट बोल्ट को हम लूज करके इस प्लेट को हम सेट कर सकते हैं कोई भी एंगल पे, ठीक है। उसके बाद जो ये टूल पोस्ट की जो मोशन है उसको हम यहाँ पे जो टूल पोस्ट हैंड व्हील है उससे हम यहाँ पे उसको मूवमेंट दे सकते हैं। और ये हमारी कंपाउंड स्लाइड है, और इसके नीचे यहाँ पे क्रॉस स्लाइड है, और ये यहाँ पे क्रॉस फीड का व्हील, फिर ये कैरेज पार्ट, ये पूरा का पूरा, और यहाँ पे जो कैरेज का लॉक स्क्रू यहाँ पे दिया गया है, फिर ये थ्रेडिंग डायल यहाँ पे दिया गया है, जो हमको थ्रेड कट करने हैं तब ये काम में आएगा। फिर ये हाफ नट स्क्रू है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर लॉन्जिट्यूडनल फीड लीवर है। सो ये सारे पार्ट हो गए, ठीक है। कंपाउंड स्लाइड इज माउंटेड ऑन क्रॉस स्लाइड। जो कंपाउंड स्लाइड है वो क्रॉस स्लाइड के ऊपर माउंट की गई होगी, एंड इट सपोर्ट्स द टूल पोस्ट। और उसका मेन फंक्शन क्या होगा, जो टूल पोस्ट है उसको सपोर्ट करना होगा, एंड ऑल्सो टू प्रोवाइड द एंगल टू द टूल, ओके। it allows the movement of tool along a path not parallel to lathe axis, center axis। यहाँ पे जो लेथ की एक्सिस है उसके पैरेलल नहीं, लेकिन कोई पर्टिकुलर एंगल पे हमको चाहिए, ठीक है, फीड हमको टूल को प्रोवाइड करनी है, तो वो हम इससे प्रोवाइड कर सकते हैं। दिस परमिट्स द टर्निंग ऑफ कॉनिकल और टेपर्ड सरफेस। जो भी कॉनिकल या फिर टेपर्ड सरफेस होगी तो उसका टर्निंग हम इससे कर सकते हैं। इट डज नॉट हैव एनी पावर फीड। यहाँ पे कोई भी पावर फीड नहीं होगा, ठीक है, कोई भी यहाँ पे पावर फीड पॉसिबल नहीं है, और इसको मैन्युअली फीड ही होता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में। द हैंड फीड इज यूज्ड व्हेन द टेपर टर्निंग इज रिक्वायर्ड, व्हिच इज डन बाय ग्रेजुएटेड सर्कल स्केल सेटिंग, ठीक है। सर्कुलर स्केल सेटिंग यहाँ पे दिया गया है, उससे हम टेपर टर्निंग के लिए जो रिक्वायर्ड एंगल है वो यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द कंपाउंड स्लाइड, and then there is the tool post. There you can see here the how the here by removing the nut we can use left-handed or right-handed tool. This one is the right-handed tool, okay. Depending on the motion from right side to left side,
when the cutting action takes place, that is called as right handed tool. And when the if the motion is taking from left side to the right side for the cutting, it is called as a left handed cutting tool. Here it is the right handed cutting tool, because the motion will take from the right side and to the left side. And for left handed cutting tool, it will taking from the left to right side. And it is essential condition of the turning that the cutting tool or the cutter be rigidly and securely held, and device used for the purpose is known as the टूल पोस्ट. यहाँ पे जो ये हमारा जो है ये कंपाउंड स्लाइड है, ठीक है, और कंपाउंड रेस्ट, और उसके लिए यहाँ पे टूल पोस्ट के ऊपर ये माउंट किया गया होगा सिक्योरली, ठीक है. एंड इट कैन बी मूव्ड टू लेफ्ट और राइट विद द हेल्प ऑफ कंपाउंड स्लाइड, एंड इट कैन बी clamped in place also. The tool post can be rotated also as the work as whether where whatever the angle is best for the job. यहाँ पे जो टूल पोस्ट है उसको हम रोटेट कर सकते हैं एज द वर्क एट वॉट एवर एंगल इज द बेस्ट फॉर द जॉब. जो भी बेस्ट एंगल है वहाँ पे हम सेट कर सकते हैं. फिर क्विक रिलीज टूल पोस्ट है, वहाँ पे इज नाउ बीइंग यूज्ड इंक्रीजिंगली फॉर दिस. यहाँ पे क्विक रिलीज के लिए ये जो है यहाँ पे सेंटर जो पार्ट है उससे हम क्विकली यहाँ पे ये हैंडल है उससे हम रिमूव भी कर सकते हैं और सेट भी कर सकते हैं विद द क्विक रिलीज. So quick release tool post is mostly now used, okay, because every time we have to set the nut and bolt, so it is very difficult task. But after setting the tool to particular diameter size, and after clamping this screws, we can just open the quick handle with the quick handle. So quick release type tool posts are also used. So this is it for today's lecture. Thank you very much for listening me carefully. Have a nice day.